लाइव हैं हम। Okay. Yeah. I can't hear my own audio because आ रही है। आ रही audio बिल्कुल ठीक. All right. बिल्कुल बिल्कुल सही है। Perfect. फिर मैं इसको बंद करती हूँ and we'll get started. ठीक है. Perfect. All right. Assalamu alaikum everyone. आज हम करने वाले हैं easily the most controversial topic of our medicine. Yeah, of our medicine syllabus. इसमें अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती है and that's why we decided to put it up on live. We're going to start with acid-based disorders. ठीक है, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं literally. Yeah, okay. So I'm going to put the chat on my... Okay. Let's get started, and I want to get started with a scenario. Let's just jump right in. ठीक है. There's no point हम इसकी etiology इतनी देर पढ़ते रहें और फिर end पे हमें question भी solve ना करना है. तो हम direct इसके ना question से ही शुरू करते हैं ताकि हमें basic पता चल जाए acid alkalosis के difference और उसके बाद उसकी जो बाकी labs हैं उनको कैसे देखना है हमने. ठीक है. Question number 20A. A 14-year-old girl is brought to the emergency ward in an unconscious state. For the last days, she was having fever with sore throat, followed by breathlessness, abdominal pain, and clouding of consciousness. On physical examination, she is thin and lean, hyperventilating, flushed, and dehydrated with peculiar odor in her breath. Following are her lab reports: pH 7.1, sodium 144, and potassium 5.7. Chloride is 102 and the bicarbonate is 10. What type of acid-base equilibrium is seen and what is the likely cause of this acid-base abnormality? Now, before we jump to any conclusions, let's just analyze these labs. Let's just look at इसकी इन labs की normal value क्या होना चाहिए और इस जो है इस scenario में कौन-कौन सी abnormal labs हैं. ठीक है. तो right off the bat, the first thing that we notice is उसका pH जो है वो 7.1 है. Normal हमारे blood का pH should be 7.35 to 7.45. This is like a rough value that you should remember. 7.35 to 7.45 is supposed to be normal. ठीक है, and इसका pH है 7.1. So we can tell that it's acidic. तो already हमारे mind में acidosis आ गया because उसका pH है acidic. ठीक है. फिर आप अगली चीज जो देखते हो आपने देखना है बाइकार्बोनेट. अब मैंने ये जो पिक्चर निकालती हूँ मैंने ये दिया है डेविडसन से. ठीक है, डेविडसन की जो एंड पे रेफरेंस रेंजेस हैं उनसे लिया है. तो हमारे पास बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए नॉर्मल 21 to 29, राइट. वो मिलीमोल पर लीटर और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में बिल्कुल सेम वैल्यू है 21 to 29. So let's go back to the question and see what is wrong with the bicarbonate. It should have been 21 to 29, but the bicarbonate is decreased. ठीक है. Bicarbonate decreased है, इसका क्या मतलब? Can anybody tell me at this point कि अगर bicarbonate हमारा कम है, तो is this a respiratory problem or is this something to do with metabolism? Metabolic. Yeah, perfect. ठीक है. So now that we've looked at the bicarbonate, we know it's a metabolic problem. They haven't given us the PCO2. ठीक है, तो इसलिए हम और कुछ इसका निकाल नहीं सकते हैं. इसका हमें पता चल गया एसिडोसिस है और ये मेटाबॉलिक टाइप का है. ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास निकल आया है. What type of acid-base equilibrium is seen? It is a metabolic acidosis. ठीक है, फिर हम बाकी की लैब्स देख लेते हैं just to be sure. अब सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड इनके हम नॉर्मल लेवल्स देख लेते हैं. नॉर्मल लेवल्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस इज द पिक्चर. ठीक है, 135 to 145 सोडियम का नॉर्मल है. ये आप अभी ही याद कर लें. ठीक है, ये मत सोचे कि बाद में एक दफा वैल्यूज याद हो जाएंगी. अभी याद करें. सोडियम 135 to 145 है. पोटेशियम 3.5 to 5. Chloride 95 to 105 and calcium 4.2 to 5.2. I'm just going to repeat it again. Sodium is 135 to 145, potassium is 3.5 to 5, chloride is 95 to 105 and calcium is 4.2 to 5.2. Right, let's get back to the question. अभी तक आपको ये याद होना चाहिए and question में ये normal है या नहीं आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है, चलें जी, सोडियम का बताएं, ये normal है कि नहीं.
नॉर्मल है। बिल्कुल. And what about potassium? Hyperkalemia. Exactly. The potassium is raised. ठीक है. What about the chloride? नॉर्मल। Normal. ठीक है, तो we've identified that the potassium is raised. अब क्वेश्चन था एसिड बेस इक्विलिब्रियम, इसलिए इसके आंसर में हमने ये नहीं कहा कि देयर इज हाइपरकैलीमिया. ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड देयर इज आल्सो हाइपरकैलीमिया, लेकिन हमने इतना लंबा नहीं देना. एसिड बेस का पूछा है, उसी का जवाब देना है. एंड व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ दिस एसिड बेस एब्नॉर्मैलिटी? अब बिकॉज हम ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो यू गाइस कैन इजीली टेल मी. एक यंग गर्ल है, ठीक है, उसका पेक्यूलियर ओडर इन ब्रेथ है, शी इज हाइपरवेंटिलेटिंग एज वेल. तो मोस्ट DKA है, diabetic Yeah, ketoacidosis. so diabetic ketoacidosis is the most common type of one of the most common types of metabolic acidosis. और ये हमारे पास ये इसका एक बहुत अच्छा सिनेरियो है. ठीक है, उसके पास ये precipitating एक चीज भी है, फीवर, सो थ्रोट हुआ और ये सब कुछ हुआ. तो likely cause इसका हम कह सकते हैं diabetic ketoacidosis, type 1 diabetes, all of that. ठीक है, तो ये हमारे से easily question solve हो गया. Now let's get back to the basic theory of this and do the whole thing, और फिर हम वापस questions के पास आएंगे. ठीक है, I really like how it's written in Step Up. You guys are free to follow whichever book. Let's just get on with this. ठीक है, metabolic acidosis का मतलब है pH is less than 7.35. ठीक है, अब कुछ causes हैं, उसके अंदर हमारे पास anion gap normal होता है, और कुछ causes में हमारे पास anion gap जो है वो ज्यादा होता है. ठीक है, raised होता है. अच्छा, anion gap क्या है? It is the difference between the sodium and the basically the cations and the anions. ठीक है, तो sodium minus chloride plus bicarbonate, right? अगर anion, let's just talk about the causes. ठीक है, अब हमारे पास जब भी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हमारा बाइकार्बोनेट वो है लूज हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास होगा एसिडोसिस. ठीक हो गया ना, ये समझ आ गई ना बात, के मेटाबॉलिकली जब बाइकार्बोनेट लूज होगा तो होगा एसिडोसिस. अब बिकॉज बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है, तो एक नेगेटिव जो है वैल्यू वो लूज हो रही है. ठीक है, हमारे पास एक नेगेटिव आयन ये जो है ये लूज हो रहा है, तो क्लोराइड क्या करेगा, उसके लेवल्स ऊपर चले जाएंगे टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस इन द बाइकार्बोनेट. ठीक है, क्या हो रहा, बाइकार्बोनेट गया और उसकी जगह पे हमारे पास आ गया क्लोराइड. तो जब भी हमारे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है क्लोराइड बाइकार्बोनेट लॉस को. बिल्कुल इसी तरह है. ठीक है ना, फिर क्या हो गया, हमारा जो एनाइन गैप है वो तो सही रहा, बिकॉज क्लोराइड ने ऐसे थोड़ा बहुत सिस्टम ठीक कर दिया था, कॉम्पेंसेट कर दिया था, लेकिन एज ए टोटल बॉडी में क्या हुआ, हमारे पास हो गया हाइपरक्लोरीमिया. तो जिस भी कॉज के अंदर हमारी बाइकार्बोनेट लूज होगी तो वो होगा हमारे पास हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, ये बात समझ आ गई ना. बाइकार्बोनेट गया, उसकी जगह पे आया क्लोराइड. क्लोराइड ने एनाइन गैप को बचा लिया, लेकिन बॉडी के अंदर हाइपरक्लोरीमिया हो गया. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसकी कॉज पे आ जाते हैं. ये सेक्शन में स्किप कर रही हूँ, ये अपनी सैनिटी के लिए ना ही पढ़ें तो बेहतर है. ठीक है, इंक्रीज्ड एसिडोसिस हम लोग देखते हैं नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस इज आल्सो नोन एज हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, अब इसमें दो मेन कॉजेज हैं, या फिर रीनल लॉस हो रहा है बाइकार्बोनेट का, या जीआई लॉस हो रहा है. ठीक है, और जो डायरिया है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एनाइन गैप एसिडोसिस. ठीक है, तो नॉर्मल एनाइन गैप होगा, हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा. इनकी दो कॉजेज आपने सिर्फ याद रखनी है, एक है रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट और दूसरी है जीआई लॉस. जीआई लॉस में सबसे ज्यादा जरूरी डायरिया है. इन्होंने पैंक्रियाटिक फिस्टुला और दूसरी कुछ चीजें भी लिखी हुई है, लेकिन डायरिया आपने नहीं भूलना. ठीक है, वेरी हाई यील्ड. फिर अब रीनल लॉस में क्या हो रहा है, हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आता है एक कॉज. ठीक है, और ये मैं आगे हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे. जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हैं, 3 टाइप्स के हैं, डोंट वरी जस्ट येट कि क्या टाइप्स हैं, कैसे हो रहा है, सब कुछ हम वो डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल के लिए आप याद रखिए, रीनल लॉस में सबसे टॉप पे है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. तो इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों हैं, उसके अलावा कुछ दूसरी कॉजेज हैं, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप मेन वाली याद रखें. ठीक है, तो आई विल गो ओवर दिस अगेन. द नॉर्मल
क्या कहते हैं anion gap acidosis is also known as the hyperchloremic metabolic acidosis. दो causes हैं इसकी, एक renal है और एक GI है. renal में renal tubular acidosis और GI में हमारे पास है diarrhea. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसकी normal anion gap acidosis. Now let's look at when our anion gap does not remain normal. ठीक है, अच्छा, I'm just gonna start drawing right now because it will make our life so much easier. Let me get a nice color. Yeah, pink looks nice. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास था cations minus anions was the anion gap. ठीक है. Oh, today's topic is acid-base imbalances along with electrolyte imbalances. ठीक है. And please tag your friends and share it with them ताकि उनका भी फायदा हो. ठीक है, ये टॉपिक काफी हाई यील्ड भी है और काफी ये मुश्किल भी है, तो अच्छा है आज ही कवर हो जाए सबका. ठीक है ना. राइट, cations minus anions हमारे पास था anion gap. ऑल राइट, cations में हमारे पास क्या मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन है सोडियम. ठीक है, और पोटेशियम में थोड़ा सा होता है लेकिन हम उसको ना इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कम होता है. फिर माइनस हो गया और क्लोराइड प्लस, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दें, और HCO3. आई एम सो सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, मेरा माउस घूम गया इसलिए अब इसी तरह ही होगा. ठीक है, कैटायन माइनस एनायन. ठीक है, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट. अब हमने देख लिया था कि जब बाइकार्बोनेट कम हो रहा था तो क्लोराइड ज्यादा हो रहा था. राइट, तो ये हो गया नॉर्मल एनायन गैप रहा. अब ये इस तरह का डिफरेंस आता क्यों है, ये नंबर किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, ये उन दूसरे एनायंस को सिग्निफाई कर रहा है जो थोड़े से बच जाते हैं, जैसे हो गया ऐसे फॉस्फोरस वगैरह हो गया. ठीक है, देयर सो मेनी अदर्स. तो थोड़े थोड़े जो एनायंस हमारे पास रह जाते हैं उनको ये सिग्निफाई करता है. आई जस्ट चेंज द पेज सो दैट wait a minute, clear all my drawings. Yeah, I'll just change the page so that you guys can see what I'm talking about. क्योंकि लिखा हुआ है बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है. Right, reflects ions present in the serum but unmeasured. उसके अंदर प्रोटीन्स आते हैं, फॉस्फेट्स आ रहे हैं, कुछ सल्फेट्स वगैरह हैं, तो ये उसको मेजर करता है. अब जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा चेंज आएगा, या एंडोजेनसली कोई कैटायन प्रोड्यूस हो रहा हो या एक्सोजेनस कोई कैटायन प्रोड्यूस हो रहा हो जो कि बाइकार्बोनेट नहीं है, जो कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट नहीं है, मतलब वो ये अनमेजर्ड एनायंस में आ जाएगा, तो उस केस में हमारा एनायन गैप ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी, जो एक ऐसा एनायन है वो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, वो अब हो गया है प्रोड्यूस, या फिर बॉडी में हो गया तो एंडोजेनस उसकी कॉज आएगी, या फिर कहीं बाहर से आया तो उसकी एक्सोजेनस कॉज आएगी. ठीक है, तो हमारे पास फिर एनायन गैप हो जाएगा ज्यादा. ये बात समझ आ गई है या मैं इसको रिपीट कर दूं एक दफा? रिपीट कर दो फिर नहीं. अच्छा, रिपीट करती हूँ. हमारे पास एनायन गैप नॉर्मल है, सोडियम माइनस क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. हमने देख लिया कि कॉम्पेंसेट कैसे हो रहा था, बाइकार्बोनेट लूज हो रहा था, क्लोराइड ज्यादा हो रहा था. अब ना बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मतलब ना इसमें कोई चेंज आ रहा है और ना क्लोराइड में कोई चेंज आ रहा है, बल्कि हमारे कोई और ऐसा एनायन आ गया, ठीक है, जो इन दोनों में से नहीं है, तो ये इस डिफरेंस को ज्यादा कर देगा. ठीक है, हमारे पास हम एक्चुअल एनायन गैप से मेजर क्या कर रहे थे, ये वो एनायंस हैं जो सीरम में हैं लेकिन वो मेजर्ड नहीं है. ठीक है, वो इन दो के अलावा हैं. तो इन दो के अलावा जब भी कोई और हमारे पास एनायन आ जाएगा बॉडी में, तो उसके अंदर एनायन गैप हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अनमेजर्ड हमारे पास कॉम्पाउंड से जो अनमेजर्ड एनायंस थे वो ज्यादा बढ़ गए हैं ना, कहीं बाहर से आया है, कहीं बॉडी में से प्रोड्यूस हो रहा है, वो अनमेजर्ड जो थी चीज वो बढ़ गई, तो फिर जाहिर सी बात है एनायन गैप बढ़ गया ना नेचुरली. ठीक है, तो इसको इस तरह याद रखें. इसके अंदर हमारे पास मैं एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग सा निमोनिक बनाया हुआ था, और वो मैं निमोनिक जो है मैं आपको वो लिख देती हूँ इधर, और हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ से पढ़ भी लेंगे. It's La Mud Pie. So I'm just going to LAMUD
and then I've run out of space, so P, I, and E. ठीक है, तो just like take out your notebooks and write it on that. L से हमारे पास है lactate, ठीक है, lactate. A से हमारे पास है aspirin. M से हमारे पास है methanol, ठीक है. U से uremia. D से diabetic ketoacidosis. P से propylene glycol. I से isopropyl alcohol and E से ethylene glycol. So I'm just going to repeat it. L से lactate, A से aspirin, M से methanol, U से uremia, D से diabetic ketoacidosis, P से propylene glycol, I से isopropyl alcohol and E से ethylene glycol. ठीक है, so just quickly write that down. इसको आपने याद करना है, लिख के दीवार पे चिपका लेना है, whatever. ठीक है, you need to know these causes. और इसके अंदर से जो सबसे मेन causes आपने जाननी है वो है ketoacidosis, lactic acidosis, जो especially जो diabetic ketoacidosis है, ठीक है, lactic acidosis, renal failure, and then intoxication with aspirin, methanol and ethylene glycol. ठीक है, these are the really important ones. तो अब हमने establish कर लिया कि हमारे पास anion gap जो है वो increase हो चुका है. तो इसमें हमारे पास 3 causes आ रही हैं, and ये बिल्कुल डेविडसन ने भी इसी तरह लिखा हुआ है. हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस एक cause आ रही है, कीटोन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है. इन तीनों में कीटोन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में हमें ऑलरेडी मैकेनिज्म पता है. प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में कीटोन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है. प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल अब्यूज में भी कीटोन प्रोडक्शन जो है हमारी ज्यादा हो जाती है. क्या थी, कीटोएसिडोसिस में कीटोन ज्यादा थे, डायबिटीज में, स्टारवेशन में और अल्कोहल जो क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज है उसके अंदर. ठीक है, ये हमारे पास होगी कीटोएसिडोसिस की. फिर हमारे पास है लैक्टेट आ गया. इसमें कीटोन ज्यादा आ रहे थे, कीटोन्स जो है हमारे एनायनिक फॉर्म में. ठीक है, फिर हमारे पास लैक्टेट ज्यादा आ जाता है लैक्टिक एसिडोसिस में. इसके अंदर एक टाइप 1 है हमारे पास और एक टाइप 2 है. ये बिल्कुल डेविडसन में इसी तरह लिखा है, पेज 365 अगर आप डेविडसन से फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, टाइप 1 जो है वो ड्यू टू टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, लो टिश्यू परफ्यूजन की वजह से. ठीक है, जैसे शॉक और सर्कुलेटरी फेलियर वगैरह में हम देखते हैं. तो इन्होंने इसको 2 पॉइंट करके लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास है टाइप 1, राइट. फिर हमारे पास जो टाइप 2 है उसके अंदर जो लैक्टेट है उसका इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है. कोई मतलब कोई लिवर डिजीज है या कोई ड्रग और टॉक्सिन ऐसा है जिसके अंदर हमारी जो लैक्टेट है उसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल था वो इम्पेयर हो चुका है, तो वो हमारे पास है टाइप 2. टाइप 1 क्या थी, टाइप 1 के अंदर टिश्यू हाइपोक्सिया था, शॉक वाली स्टेट थी, उसमें जनरेशन हुई थी लैक्टेट की. और टाइप 2 के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म वो है खराब हो गया लिवर के अंदर, या फिर कोई ड्रग्स ऐसे दिए जिसकी वजह से जिसका लिवर का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, तो वो हमारे पास है टाइप 2. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है रीनल फेलियर. ठीक है, रीनल फेलियर इज अ प्रीटी ऑब्वियस कॉज फॉर इंक्रीज्ड एनायन गैप एसिडोसिस. तो मैं सिर्फ इसको इतने पे ही रखूंगी रीनल फेलियर पे, राइट. फिर इंटॉक्सिकेशन में एस्पिरिन याद रखें, मेथनॉल एंड एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, तो ये मेन इसकी कॉज हैं. आई थिंक नेक्स्ट पेज पे भी कुछ दी हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. अच्छा नहीं दी हुई, या दिस इज प्रीटी मच इट. तो लेट्स जस्ट गो ओवर दिस अगेन ताकि ये अभी ही याद हो जाए. टाइप्स किसकी बताई हैं. दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसके अंदर एनाइन गैप जो है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, और टाइप्स जो टाइप 1 और टाइप 2 बताया था, या लैक्टिक एसिडोसिस की टाइप 1 टाइप 2 आप अपनी वहां नोट्स पे डालें, पेज 365 ऑफ डेविडसन फॉर रेफरेंस. ठीक है, हमारे पास इंक्रीज एनायन गैप में था कीटोएसिडोसिस 3 टाइप्स का, डायबिटीज, स्टारवेशन, अल्कोहल. फिर था लैक्टिक एसिडोसिस टाइप 1 लो टिश्यू परफ्यूजन, शॉक. टाइप 2 impaired metabolism of lactate. फिर था रीनल फेलियर. फिर है इंटॉक्सिकेशन. 3 चीजें कौन सी हैं, एस्पिरिन, मेथनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, और जो पहले मैंने आपको निमोनिक बताया लामेड पाए, तो उससे भी आप उसको याद रख सकते हैं. ऑलराइट, तो ये होगी हमारे पास मेन इसकी कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस की. लेट्स जस्ट गो ओवर इट अगेन. जो नॉर्मल एनायन गैप वाला था उसके अंदर 2 थी, या फिर जीआई लॉस हो रहा था बाइकार्बोनेट का, या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से लॉस हो रहा था बाइकार्बोनेट का.
ठीक है। जो हमारे पास इंक्रीज एनाइन गैप की कॉजेज हैं उसके अंदर थिंक ऑफ इट एज एंडोजेनस वर्सेस एक्सोजेनस, और ये टेबल बना हुआ है पेज 365 डेविडसन के 14.19। इसके ऊपर एंडोजेनस के अंदर क्या है, या फिर कीटोन्स बन रहे हैं बॉडी में, या लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, या किडनी डिजीज है। कीटोन्स बन रहे हैं बॉडी में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, स्टार्वेशन की वजह से, अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज की वजह से, फिर लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, फिर किडनी डिजीज हो रहा है। फिर एक्सोजेनस क्या है, एस्पिरिन बाहर से दी, मेथनॉल बाहर से उसने ली, एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग बाहर से हुई। ठीक है, तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एज अ होल, राइट। अब हमने इसको डिटेल में देख लिया है, तो हम अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस वगैरह और ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स अब हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास आएगी हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, अब मेटाबॉलिकली बाइकार्बोनेट का या फिर लॉस हो गया था, या फिर क्या कहते हैं एसिडोसिस जो है जब हो गया था, तो हमारी बॉडी अब चाह रही है कि जो भी ब्लड के अंदर एसिडिक जो हैं इश्यूज उनको हम ठीक कर दें। उसके लिए हम हाइपरवेंटिलेशन करना शुरू कर देंगे। वी विल स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ द CO2। ठीक है, we'll start getting rid of the CO2 just to save our pH। तो हाइपरवेंटिलेशन में डीप रिदमिक ब्रीदिंग होगी, इसको हम स्मॉल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और ये हम कॉम्पेंसेशन के लिए करते हैं। फिर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन होगी। ये आपको सिनेरियो से काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर रहा है आपके पास। ठीक है, डायग्नोसिस में अब हमारे पास है हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, फिर एनाइन गैप, अगर आपके पास सब कुछ दिया हुआ है तो आप एनाइन गैप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ नॉट, आप डायरेक्टली अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बता देंगे विदाउट टेलिंग द एनाइन गैप, इट शुड होपफुली बी सफिशिएंट। या I'm getting there। हम ABGs से देख, अभी मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ, फिर हम देखेंगे कि ABGs को देख के कैसे हमने देखना है कि रेस्पिरेटरी कॉम्पेंसेशन हो रही है कि नहीं। So we have something called the Winters formula। ठीक है, I want you guys to remember this on your fingertips। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो हमारे पास राइज इन PCO2 है वो होना चाहिए 1.5 into bicarbonate plus 8 plus or minus 2। तो how about we look at this in a scenario कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाइपरवेंटिलेशन हो रही है वो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है या उसको कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या एसिडोसिस है कि नहीं। ठीक है, so let's look at the questions। Alright, इसमें unfortunately मैं आंसर को वो नहीं कर सकी थी। I couldn't get rid of the answer over here, but हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं and let's see how we've calculated it। So a patient comes in, a 35-year-old man who was a chronic alcohol drinker, was wounded, I think. He was unconscious in his room at weekend. His lab reports were as follows. His blood sugar random was 90. His pH is 7.16. His bicarbonate is 10. PCO2 is 25, serum chloride is 102, serum sodium is 107, and I'm assuming this says maybe, I have no idea what this says. Let's just assume that potassium is not important here. Okay, acid-based is 4.5. It says 4.5. All right, it's 4.5. Okay. So अब because I expected you guys to remember the normal values, we can tell that our serum chloride is normal. This is like 2 points raised, but and then this is also kind of normalish. ठीक है, अब हमने blood sugar देख ली random, it's perfectly fine. तो अब हम देखते हैं pH 7.16 है. This is quite a lot of acidosis। ठीक है, तो हमने acidosis establish कर दिया है, this is acidosis। फिर हम bicarbonate को देख लेते हैं, bicarbonate is 10, bicarbonate is reduced। ठीक है, bicarbonate is reduced, so this is metabolic acidosis। Now we see that the PCO2, I'm just going to show you the normal value of the ABGs once again। ठीक है, PCO2 जो normal है वो है 34 to 45। तो अब ये कम है हमारे पास। ठीक है, 34 to 45 जो है वो नॉर्मल है ABGs में,
और हमारे पास जो सिनेरियो के अंदर वैल्यू है वो है 25। ठीक है, तो ये कम है। अब हमें क्या पता है कि ये कॉम्पेंसेटरी है या शायद कोई रेस्पिरेटरी मसला भी है, तो हम लगाएंगे इधर विंटर्स फॉर्मूला। विंटर्स फॉर्मूला क्या था? 1.5 into बाइकार्बोनेट प्लस 8 एंड देन हम उसका रेंज निकालेंगे ±2 करके। तो 1.5 into 10 is 15। ठीक है, 15 + 8 is 23। अब 23 की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। इनफैक्ट I'll just write this over here in the text। ठीक है, तो we had 1.5, ये फॉर्मूला है 1.5 into हमारे पास बाइकार्बोनेट है 10। ठीक है, और हमने इसको करना है +8 देन ±2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 15 + 8 is 23। और अगर हम इसकी रेंज निकालें तो 21 से लेके हमारे पास रेंज जाएगी 25 तक। ये बात समझ आ गई? ±2 करके रेंज निकालनी थी। ठीक है, या ±2 जो है उसको करके रेंज निकाल दी। जबरदस्त। ठीक है, तो 21 to 25 हमारी रेंज आ गई है। अगर इस रेंज के दरमियान है तो मतलब ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया PCO2 जो है ये 25 है, जस्ट अभी रेंज के अंदर ही है, तो इसका मतलब है ये कॉम्पेंसेटरी जो है वो रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है। अगर सपोज इसकी वैल्यू होती ज्यादा, लाइक ये आता हमारे पास PCO2 लाइक 28, तो व्हाट वुड दिस बी? ये मिक्स्ड डिसऑर्डर हो जाता। ये क्या डिसऑर्डर बनता? एनीबॉडी गेस कर लो? अच्छा, नॉर्मली अगर PCO2 ज्यादा हो और कोई रेस्पिरेटरी मसला हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस कहते हैं, अल्कलोसिस कहते हैं? अल्कलोसिस होगा वो तो। एसिडोसिस होगा एसिडोसिस, क्योंकि CO2 एसिड है एक तरह से। ठीक है ना, CO2 बॉडी में ज्यादा है तो उसको हम एज एन एसिड कंसिडर करेंगे। तो नॉर्मली जब रेस्पिरेटरी मसला होगा कोई, ठीक है, तो और PCO2 ज्यादा रहेगी तो उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू जैसे अगर 28 होती, इस रेंज से ज्यादा है तो ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। अगर इस रेंज से कम है तो फिर इन कंट्रास्ट क्या होगा हमारे पास? जैसे 21 से कम है, लाइक 12 हो गई PCO2 की वैल्यू, फिर क्या रेस्पिरेटरी क्या मसला है? alkalosis Thank you for taking part in this discussion. Alkalosis, right? Alkalosis. So we're gonna go over this again. मैंने इसकी drawings, मैंने इसको Google पे निकाल लिया। आप लोग भी इस तरह Google करके इसको देख सकते हैं। This is supposed to be a good example of a scenario, but scenario नहीं, हम इसका basic ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने जब प्रिडिक्टेड, जब एक्चुअल और प्रिडिक्टेड जो है वो सेम रेंज में थे तो इट वाज जस्ट अ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, देयर इज नो अदर इशू गोइंग ऑन। अगर हमारे पास जो एक्चुअल PCO2 है वो ज्यादा है प्रिडिक्टेड से, जैसे हमने पिछले सिनेरियो में देखा है, तो इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एज वेल। फिर जब हमारे पास जो मेजर्ड PCO2 है वो लेस देन प्रिडिक्टेड है तो वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। I hope that this is clear to everyone. इस concept को थोड़ा grasp करने में time लगता है, तो I just want you guys to write down Winter's formula on your book and do a lot of questions. ठीक है, इसको करने का यही तरीका है कि इसके बहुत सारे questions किए जाएं। Right, let me get back to what we were doing. Right, हमारे पास patient आया, हमने उसकी history ली, हमने उसका anion gap measure कर लिया, और हमने इनफैक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में उसका anion गैप नहीं मेजर किया। लेट्स जस्ट डू दैट एज वेल। ठीक है, राइट, हमें इन्होंने दिया हुआ है सोडियम भी दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट भी दिया हुआ है, क्लोराइड भी दिया हुआ है। मुझे anion गैप मेजर करके बताओ। जस्ट लाइक डू इट ऑन योर फोन्स और व्हाटएवर। पहले हम कर लेते हैं क्लोराइड और इसको ऐड। ठीक है, 102 को ऐड कर लिया, और किससे ऐड करना है? हमने बाइकार्बोनेट से जो 10 है। ठीक है, 112। फिर हम इसको 147 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास anion गैप आ जाएगा। हाँ जी, बताएं क्या आया आपके पास? बिल्कुल 35 आ गया anion गैप।
ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल एनाइन गैप जो स्टेप अप में लिखा है वो है 5 to 15, ठीक है, और आई थिंक 5 to 11 लिखा हुआ है इसमें डेविडसन में, ठीक है। तो अब हमारे 35 आ गया, तो इसका मतलब है एनाइन गैप जो है वो ज्यादा हुआ है। तो इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा स्पेशल यू कैन राइट मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म along with raised anion gap, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन करने की आपके पास adequate information आ गई है। 4 causes of the same acid base disturbance, metabolic acidosis जिसमें आपके पास raised anion gap है, इसकी 4 causes मुझे अभी बताएं क्योंकि मैंने आप बहुत दफा रिपीट किया है। Lactic एस्प्रिन acidosis. इनटेक है, Diabetic ketoacidosis. Yeah, I heard 3 इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, अच्छा try to go for like the most obvious ones first, ठीक है, like diabetic keto, I mean this is like normal sugar, but just if you were doing anion gap ones, तो फिर diabetic ketoacidosis would obviously be at the top, and then you would do what do you say, lactic acidosis and all of that, या फिर आप scenario dependent भी कर सकते हैं कि उसी की causes बताएं, but for the sake of simplicity because they've just said 4 causes of this acid base disturbance, then you don't have to worry about the scenario, कोई भी 4 causes बता सकते हैं। तो मुझे 4 causes 4 से ज़्यादा आप लोगों ने बता दी, which is very nice, thank you। And then enlist the management steps, so this is where we get to the real stuff, now we have to treat this patient, ठीक है। हम patient आया, हिस्ट्री ली, एबीजी कैलकुलेट किया और फिर विंटर फॉर्मूला लगा के देखा कंपेंसेशन हो रहा है या कोई मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। जब हमने इसको एस्टैब्लिश कर दिया तो हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, इट डिपेंड्स ऑन कॉज। आई हैव रिटन पेज 366 डेविडसन्स फॉर ट्रीटमेंट। 366 डेविडसन पे एक लंबी सी कहानी लिखी हुई है कि जो कॉज है उस हिसाब से ट्रीट करें, अगर पेशेंट मैलरिश्ड है उसको उसके अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन दें, अगर कोई डायबिटीज है उसको ट्रीट करें, अगर शॉक है शॉक की सिचुएशन में उसको आईवी फ्लूइड्स लगा के आप रिससिटेट करें, ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अगर अल्कोहलिक क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसके अंदर आप थायमीन दें, पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट जो भी उसका कम हुआ है ना बेसिकली वो आप ऑलराइट वो आप दें उस पेशेंट को, ठीक है। तो इसकी है treatment is depending on cause. फिर right, I'm going to repeat Winter's formula, ठीक है, Winter's formula I'm gonna go in the book as well, ठीक है। This is the Winter's formula। हम कैसे calculate करते हैं? Winter formula है कि expected हमारे पास जो हमारी expected value of PCO2 वो कितनी होनी चाहिए, it should be 1.5 into the level of bicarbonate plus 8 and then plus minus 2, ठीक है। तो यू कैन इजीली गूगल दिस एंड आई जस्ट रेकमेंड कि आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं आप इसको कैपिटल्स में वहां लिख लें और इसको आप गूगल करके आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन वहां से रीड कर लें, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट गोना मूव फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन कॉज है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कभी कभार हम देते हैं फॉर द नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस। क्यों? बिकॉज मैं बताया था आपको क्या लूज हो रहा था, आपका बाइकार्बोनेट जा रहा था। अब वही जो बाइकार्बोनेट आपका जा रहा था आपने उसको पकड़ के वापस बॉडी के अंदर डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट उसको दे दिया, और बिकॉज हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन हो रही है तो आपको शायद वेंटिलेटरी फटीग की वजह से उसकी मैकेनिकल वेंटिलेशन भी करनी पड़े, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके पास हो गई। और ये डेविडसन में जो पेज 366 है इस पे एक लंबी सी कहानी लिखी हुई है about giving sodium bicarbonate, about how it's just reserved for specific situations, severe cases में सिर्फ देते हैं, हर किसी को नहीं बिला वजह दे देते, ठीक है। बस यही है ट्रीटमेंट क्या थी, डिपेंडिंग ऑन कॉज। अगर नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस है जिसमें हमारा बाइकार्बोनेट लूज हो रहा है तो उसके हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं सिवियर केसेस में ओनली, एंड देन वी माइट नीड सम मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। सो दिस इज आवर होल स्टोरी अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, नाउ आई टोल्ड यू गाइस कि मैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को टच करूंगी, एंड लेट्स जस्ट गेट टू रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की इटियोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एंड आई ओनली वांट यू गाइस टू रिमेंबर 1-2 मेन चीजें, ठीक है। ऑलरेडी हमने बहुत जो है याद करने वाली चीजें करनी है। तो if you guys are following from Davidson's, you guys can open page 365, उसके ऊपर एक टेबल बना हुआ है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का।
रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में रीनल ट्यूब्यूल्स के मसले की वजह से एसिडोसिस हो रहा है। कौन सा? नॉर्मल एनाइन गैप एसिडोसिस। ठीक है, अब इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एक है हमारे पास क्लासिकल डिस्टल, और एक दूसरा वाला है डिस्टल जिसके अंदर हाइपरकैलीमिया हो जाता है। राइट, लेट्स जस्ट से दिस अगेन। एक है हमारे पास प्रॉक्सिमल, ठीक है, दो हमारे हो गए डिस्टल, एक डिस्टल क्लासिकल है और दूसरा डिस्टल जो है वो हमारे पास हाइपरकैलीमिया कॉज करे। जो दूसरे दो हैं, यू नो व्हाट, दिस इज गोना गेट वेरी कंफ्यूजिंग, तो ना मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है? प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल पी, एंड देन हमारे पास क्लासिकल डिस्टल है, ठीक है, और हमारे पास हाइपरकैलीमिक एच डिस्टल। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आई वांट यू गाइस टू ओपन जो फिजियोलॉजी वाला पेज है। अगर आपको इंटरेस्ट है एक्सेसिव फिजियोलॉजी के अंदर इसकी, तो फिर आप ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 351, पेज नंबर 351 ऑफ डेविडसन, और इसके अंदर दिखाया है कि किडनी के किस हिस्से पे क्या क्या इधर उधर जा रहा है। ठीक है, 351 डेविडसन। ठीक है, अच्छा, अब फॉर सम absurd reason, I swear मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, इसको जो प्रॉक्सिमल वाले को है इसको टाइप 2 कहते हैं। ठीक है, जो क्लासिकल डिस्टल है इसको हम टाइप 1 कहते हैं, और जो हमारे पास हाइपरकैलीमिक डिस्टल है इसको हम टाइप 4 कहते हैं। अब 3 किधर गया ये नहीं मुझे पता, जस्ट डोंट आस्क मी। ठीक है, तो the first type we have type 1, इसके अंदर हमारे पास हो रहा है हाइपोकैलीमिया। ठीक है, फिर जो हमारे पास हो रहा है टाइप 2, इसके अंदर भी हमारे पास हो रहा है हाइपोकैलीमिया, और जो एक बचा है जो टाइप 4 है हमारे पास, इसका नाम ही उन्होंने रख दिया हाइपरकैलीमिक डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, तो ये मेन इसकी चीजें याद रखने वाली कि ये हाइपोकैलीमिया के कॉजेज में भी आएगा और ये हाइपरकैलीमिया के कॉज में आएगा जो टाइप 4 है। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल जो वाला है, प्रॉक्सिमल वाला जिसको हमने टाइप 2 कहा हुआ है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर देयर इज एन इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो मेन बाइकार्बोनेट जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है वो हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हो रहा है, और वहां पे मसला हो जाता है कि बाइकार्बोनेट अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, बाइकार्बोनेट अब्सॉर्ब ना होने की वजह से वो सारा लूज हो जाएगा। वहां पे हमारी जो यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट जाता जाएगा एट अ पॉइंट वेयर इनिशियली हमारी यूरिन की पीएच जो है वो बेसिक होगी। बेसिक क्यों? क्योंकि उसके इतना ज्यादा तो बाइकार्बोनेट है उसके अंदर, वो जा रहा है, तो हमारी यूरिन की पीएच बेसिक होगी, और फाइनली जब पूरी बॉडी का बाइकार्बोनेट ऐसे सूख जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर हमारी यूरिनरी पीएच एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको जो ट्रीट करना जो है काफी मुश्किल है, क्योंकि अब देखो हम बाइकार्बोनेट को निकलने से रोक तो सकते नहीं है, कोई ऐसी चीज कर तो सकते नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो बॉडी का वॉल्यूम है ना उसको हम कम कर सकते हैं। तो हम डायूरेटिक्स दे के अपनी बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं। मतलब बाइकार्बोनेट तो कम हुआ वही था, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए हम पानी भी निकाल देते हैं कि चलो कम से कम कॉन्सेंट्रेशन तो थोड़ी ऐसे नॉर्मल टाइप्स आए। तो इसकी ट्रीटमेंट बस आप याद रखें, डायूरेटिक। ऑलराइट, फिर जो हमारे पास ये टाइप 1 है जो क्लासिकल डिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मसला है कि डिस्टल ट्यूब्यूल में ये हम एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, एसिड हमारा निकल नहीं पा रहा। तो नॉर्मली हमारी यूरिन में कैसे जाता है एसिड? हमारी यूरिन में एसिड जो है एक इंटरकलेटेड सेल्स वगैरह से, आप वो उस पेज पे अगर देखें तो इंटरकलेटेड सेल्स हमारे एसिड निकाल रहे हैं, H+ आयंस निकाल रहे हैं, और हमारे यूरिन के अंदर अमोनिया जो है वो अमोनियम बन जाता है, और जो फॉस्फेट है वो एक पकड़ लेता है हाइड्रोजन आयन, वो इनफैक्ट वो 2 पकड़ता है, H2PO4 बन जाता है। ठीक है, तो उस तरह हमारे यूरिन के अंदर निकल जाते हैं हमारे हाइड्रोजन आयंस, लेकिन इसमें मसला के हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, तो हमारे यूरिन की पीएच वो होगी बेसिक। ठीक है, हमारी बॉडी में H+ सारे रुक गए हैं और हमारी जो यूरिन है उसके अंदर तो निकल ही नहीं रहा कुछ हाइड्रोजन, तो वो हमारी यूरिन की पीएच होगी बेसिक। ठीक है, अब बेसिक यूरिन का सबसे बड़ा मसला क्या है? नेफ्रोकैल्सिनोसिस।
ठीक है, alkaline urine equals nephrocalcinosis and nephrolithiasis, stones, just remember alkaline urine equals stones. तो इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा मसला है stones का, alright. इसकी ट्रीटमेंट में क्या है कि हम इसके अंदर बस बाइकार्बोनेट दे देंगे. अब हम एसिड जो निकल नहीं रहा उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम बाइकार्बोनेट दे के उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दीज बेसिक टू. फिर इसके अंदर जो लास्ट थी टाइप 4 थी, इसके अंदर जो मसला था ना बेसिक, वो है कि हमारा हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है. ठीक है, तो इसकी कॉजेज में भी लिखा हुआ है आपका पेज 365 के कि इसके अंदर रेनिन भी कम है और एल्डोस्टेरोन भी कम है. एल्डोस्टेरोन हमें क्या नॉर्मली एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो हमारे सोडियम को बॉडी के अंदर रखता है पकड़ के और हमारे पोटेशियम को बाहर फेंक देता है. ठीक है, तो इस केस में बिकॉज हाइपो है, उसका नॉर्मल फंक्शन था सोडियम को अंदर रखना, पोटेशियम को बाहर फेंकना. अब नहीं हो रहा ये, तो पोटेशियम अंदर रह जाएगा और सोडियम बेचारा जाया होता जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पोटेशियम है वो ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, और इसकी ट्रीटमेंट है फ्लूड्रोकोर्टिसोन. ठीक है, फ्लूड्रोकोर्टिसोन इज लाइक सेइंग कि हम मतलब एल्डोस्टेरोन ही दे रहे हैं उसको. उसका जो मसला था हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, उसके लिए हम उसको फ्लूड्रोकोर्टिसोन दे देंगे. ठीक है, पर अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की कुछ कॉजेज हैं, वो बस आप ये पूरा रट्टा ही है बिकॉज इसकी जो मैकेनिज्म्स और वो फिजियोलॉजी और वो सब पैथोफिजियोलॉजी वो बहुत लंबी है, उसको करने का फायदा नहीं है. इसमें सब मेन चीजें आप याद रख लें. जो हमारे पास प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस था, आप उसके लिए इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में फैनकोनी सिंड्रोम एक याद रखें. ठीक है, और एक आप याद रखने माइलोमा. ठीक है, तो एक फैनकोनी सिंड्रोम हो गया, एक माइलोमा होगी इसकी कॉज. फिर क्लासिकल डिस्टल की कॉज के अंदर आप सिकल सेल लिख लें. यहाँ पे फॉर सम रीजन सिकल सेल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ ऐड कर दें, सिकल सेल डिजीज में होता है टाइप 1 RTA. ठीक है, और SLE याद रख लें. फिर हाइपरकैलेमिक डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और आई एम प्रीटी श्योर एट दिस पॉइंट आप लोग बहुत सैचुरेट हो गए होंगे. तो आई एम जस्ट गोना टेक अ 2-minute ब्रेक जस्ट टू ड्रिंक वाटर. ठीक है, और जिसको कोई डाउट्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है चैट में, तो देन आई विल एड्रेस देम राइट आफ्टर द ब्रेक. ठीक है. All right, let's get back to this. I'm going to start from the top just a little bit again. ठीक है, हमारे पास pH जो नॉर्मल थी, it was 7.35 to 7.45. ठीक है, pH इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो होगा अल्कलोसिस, pH इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो होगा एसिडोसिस. ठीक है, ये क्लियर होगी बात. अब जो एसिडोसिस के अंदर जाने के लिए या फिर मसला मेटाबॉलिक होगा या फिर मसला रेस्पिरेटरी होगा, एंड सेम विद दिस साइड. एल्कलोसिस में जाने के लिए या फिर मसला मेटाबॉलिक होगा या फिर मसला रेस्पिरेटरी होगा. मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाने के लिए हमारे जो बाइकार्बोनेट हैं वो कम हो जाएंगे. ठीक है, बाइकार्बोनेट हो जाएंगे कम मेटाबॉलिक के लिए. और अगर रेस्पिरेटरी मसला है तो हमारा जो है PCO2 वो हो जाएगा ज्यादा.
ठीक है, तो वी आर गोना प्रिटेंड एज इफ CO2 इज लाइक एन एसिड, तो PCO2 हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, फिर या अब हमारे पास एल्कलोसिस के अंदर मेटाबॉलिक, हमारे पास बाइकार्बोनेट होना चाहिए ज्यादा, और अगर ये रेस्पिरेटरी मसला है तो इसमें हमारा PCO2 होना चाहिए कम। ठीक है, तो ये हो गया ज्यादा। अब हमारा PCO2 ज्यादा कब होगा और PCO2 हमारा कम कब होगा? PCO2 हमारा ज्यादा तब होगा कि जब हमारे लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल सकेंगे। तो एज आमना हैज सेड वेरी करेक्टली, इट्स हाइपोवेंटिलेशन। तो एवरीथिंग that makes you not breathe properly, that makes you hypoventilate, will lead to respiratory acidosis. और CO2 कम कब होगा? कि जब हमने इतना ज्यादा कोई ब्रीथ कर लिया कि सारी हमने CO2 बाहर फेंक दी। ठीक है, तो this is anything that causes hyperventilation will lead to respiratory alkalosis. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये PCO2 ने ज्यादा होना था मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक बार बार मुंह से निकल रहा है, रेस्पिरेटरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर PCO2 ने ज्यादा होना था, इसके अंदर हाइपोवेंटिलेशन हो रही थी, लंग्स जो है वो CO2 को बाहर निकाल ही नहीं सक रहे थे। और एल्कलोसिस के अंदर हमारी CO2 ने जो है उसने कम होना था, और इसमें यह है कि हमने इतना ज्यादा ब्रीथ किया कि हमने सारी CO2 को बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को पढ़ लिया था, अब हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को देख लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में मैंने आपको बताया कि एक तो pH ज्यादा होगी और फिर HCO3 प्लाज्मा में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक सेकेंड, इसकी हम पहले वो देख लेते हैं कॉजेज क्या हैं। कॉजेज जो डेविडसन फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वो पेज 366 पे चले जाएं। ठीक है, इसका एज सच कोई टेबल यहाँ नहीं बना हुआ, तो चैट को रख देते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर इज वॉमिटिंग। ठीक है, एक सेकेंड, मैं पीछे जा रही हूँ। इन्होंने इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, जो whoops, just give me a minute. Sorry, my laptop is misbehaving today, like every other day. अच्छा, इसमें इन्होंने 2 causes बताए हैं इसकी, या सेलाइन सेंसिटिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, मतलब आप सेलाइन देंगे तो ये सब सेट हो जाएगा काम। ठीक है, और एक सेलाइन रेजिस्टेंट है कि आप सेलाइन देने से भी जो है वो काम ठीक नहीं होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आई वांट यू टू रिमेंबर ऑफ मेटाबॉलिक alkalosis is vomiting या nasoggastric suction. तो think of it like this कि हमारे जो स्टमक के अंदर वो बहुत सारा एसिड है, जब वो एसिड आप बाहर निकाल लोगे, चाहे वो वॉमिटिंग की वजह से हो या वो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन की वजह से हो, तो उसमें हमारे पास हो जाएगा एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड तो हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है ना? एंड देन डायूरेटिक्स हमारे पास हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? ये हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम है इसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो बिकॉज अब देखो हर जो सीरम होता है, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर सॉल्यूट्स होते हैं, नीचे सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना? अब हमने सॉल्वेंट ही कम कर दिया है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, मतलब HCO3 की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी इस केस में, डायरेटिक्स के केस में ज्यादा होगी, तो हमारे पास हो जाएगा एल्कलोसिस। ठीक है, देन देयर अदर कॉजेस सच एज विलस एडेनोमा ऑफ कोलन, डायरिया एंड हाई विद हाई क्लोराइड कंटेंट। ठीक है, इफ यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ डायरिया, जैसे जो भी कोलोनिक लॉसेस होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारा जो है वो क्लोराइड निकल जाता है, कोलोनिक डायरिया स्पेशली, तो उसके अंदर जो है हमारे पास उस केस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। ओके, somebody has sent me a message. Right, salicylates का किसी ने मुझे भेजा है। I'll read this out after. Okay, I'll read this out after after I'm done with metabolic alkalosis. ठीक है?
ओके हमारे पास कॉजेज क्या थी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की? वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग या नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, फिर डायूरेटिक्स हो गए, ठीक है, फिर हमारे पास वेरस एडेनोमा ऑफ कोलन एंड डायरिया विद हाई क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। फिर हमारे पास है सेलाइन रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके अंदर हमारे पास हो रहा है इसके अंदर मसला क्या, हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गए हैं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की एक्सपेंशन है और हाइपरटेंशन हुई पड़ी है, ठीक है। तो जो सारे हमारे जो प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, वो सारे जो डिसऑर्डर्स थे, उसकी वजह से हमारे पास एल्डोस्टेरोन का मैंने पहले ही बताया नॉर्मल मैकेनिज्म है कि वो सोडियम को अंदर ले लेता है और पोटेशियम को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो अगर आप ये वापस अपनी फिजियोलॉजिकल वो जो पेज नंबर आई थिंक 355 पे था, आप किडनी को देखेंगे, तो जब ये सोडियम को इसने अंदर लेना था, पोटेशियम को बाहर फेंकना था, तो उसके साथ साथ देयर वाज ऑल्सो अदर लॉसेस हैपनिंग, ठीक है, अलोंग साइड इट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है, तो हम सोडियम बहुत ज्यादा अंदर ले रहे हैं, पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वी आर आल्सो लूजिंग क्लोराइड एंड गेटिंग इन बाइकार्बोनेट। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इफ यू आर नॉट लुकिंग एट दैट डायग्राम, क्योंकि उस डायग्राम के ऊपर सब क्लियर है कि कौन से चैनल से क्या उसके अंदर आ रहा है। बॉटम लाइन इज, जब भी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा तो वी विल हैव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। Primary hyperaldosteronism has metabolic alkalosis, and so does some other conditions such as just give me a minute. All right, हमारे पास इसके अंदर आता है प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म एंड वी हैव कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। सीवियर पोटेशियम डिफिशिएंसी में भी इस तरह होता है। वी हैव अनदर सिंड्रोम कॉल्ड बार्टर सिंड्रोम, इसको हम आगे भी देखेंगे। Okay, somebody has written there is already hypernatremia and so it will not respond to saline. You can think of it like that. You can definitely think of it like that, but I didn't actually do the detailed mechanism of this, तो मैं इस पे comment नहीं कर सकती। All right, तो basic bottom line जो आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से सारा इशू हो रहा है, जो बेसिक इशू है, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम और बाइकार्बोनेट अंदर आ रहा है एंड एक्सेसिव लॉस हो रहा है क्लोराइड का। ऑलराइट, तो दिस इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो अगेन क्लिनिकल फीचर्स में वही मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जो है वो अप्रोप्रिएट होगी, उससे जो कॉज है उससे मुताबिक होगी। फिर डायग्नोसिस, अगेन पेशेंट आपके पास आता है, तो जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपने उसकी हिस्ट्री ली, आपने उसका वही रिससिटेशन करनी है, रिससिटेशन करेंगे, वरना एग्जामिनेशन करेंगे, फौरन उसके एबीजीज निकालेंगे, और एबीजीज को हमने पहले असेस करना देख लिया है। एबीजीज के ऊपर पीएच देखेंगे, पीएच ज्यादा है कि कम, इस केस में पीएच होगी ज्यादा, ठीक है। फिर आप बाइकार्बोनेट लेवल देखेंगे, बाइकार्बोनेट लेवल होगा ज्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर उसको आप असेस करेंगे। फिर अब कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास जो है वो होगी PCO2 एलिवेटेड होगी, ठीक है, और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हाइपो वेंटिलेशन होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी लुक्ड एट कि जब हमारे लंग्स जो हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर रखनी है बॉडी के, तो वो कम वेंटिलेट करेंगे, ठीक है, हाइपो वेंटिलेशन होगी। तो कॉम्पेंसेटरी, देयर विल बी अ कॉम्पेंसेटरी राइज इन CO2, ठीक है। थिंक ऑफ CO2 एज एन एसिड, तो वी आर ट्राइंग टू गेट दैट एसिड टू स्टे इन द बॉडी, तो कॉम्पेंसेटरी हाइपोवेंटिलेशन होगी इसमें, ठीक है। अगेन फिर आप विंटर्स फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल सेम उसके साथ होगा कि कॉम्पेंसेशन है या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, कोई एसिड, कोई मिक्स्ड एसिड बेस इशू तो नहीं। फिर ट्रीटमेंट में अगर इसकी कॉज जो है वो सेलाइन रेजिस्टेंट नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल सेलाइन देंगे प्लस पोटेशियम, ठीक है, ताकि ECF वॉल्यूम जो है वो सही से हो जाए। वैसे तो अंडरलाइंग कॉज को आपने करना है एड्रेस, लेकिन अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट रिससिटेशन में नॉर्मल सेलाइन तो दें। एंड इफ यू आइडेंटिफाइड द कॉज एज बीइंग समथिंग व्हिच इज सेलाइन रेजिस्टेंट, तो फिर आप उसको डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक ट्रीटमेंट। इसका एल्कलोसिस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट वी कैन प्रॉपर्ली एनालाइज
I think the next one is also इसकी pH किधर है? जबरदस्त, pH इसकी है ज़्यादा. अच्छा, ये मैं पढ़ देती हूँ. A 60-year-old male presents with history of persistent projectile vomiting, epigastric pain, and significant weight loss for over 2 months. On examination, he is weak and wasted. His blood pressure is 90 by 60. His pulse is 120. There is a palpable mass in the epigastric region and visible peristalsis. Investigations पे HB उसका 9 है, TLC 12,000 है, sodium 120, potassium is 3. ABGs पे we have the pH of 7.48. PCO2 is 40. Serum bicarbonate is 34. ठीक है, तो this you can tell is an alkalosis. ठीक है, अब PCO2, yeah, perfect. ठीक है, PCO2 is 40 and serum bicarbonate जो है उसके हम दोबारा वो देख लेते हैं इसकी normal values. I think इसकी normal values इस पे लिखी हुई थी. 21 से 29. 21 से 29, right? Okay, 21 से 29 इसकी bicarbonate की normal value है. ठीक है, तो bicarbonate is raised, pH is raised, bicarbonate is raised. ठीक है, तो what is it? It's a metabolic alkalosis. ठीक है, अब Winter's formula हम दोबारा इसके अंदर लगाते हैं. तो I'm just gonna write down the Winter's formula again. It is हमारी जो predicted value होनी चाहिए थी CO2 की, वो होनी चाहिए 1.5 into our level of bicarb plus 8. And I would appreciate अगर कोई ये इसको calculate करके मुझे बता दे. 1.5 into bicarb, because ये इसके लिए calculator use करना पड़ेगा मुझे. 1.5 into 34 plus 8. So that's a 59. ठीक है, should have been 59. Then plus minus 2 कर दें तो इसकी रेंज आ रही है हमारे पास 57 से लेकर 61 तक. सॉरी, मेरा जो 6 वाली की है वो टूटी गया. 61. ऑलराइट, तो इसकी हमारे पास ये रेंज आई है. एक सेकेंड, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के मुताबिक एक सेकेंड, दिस इज नॉट नॉर्मल, आई डोंट थिंक सो. ठीक है, दिस रेंज शुड नॉट फॉर्मूला हैव. इस पे नहीं लगेगा, फॉर्मूला इस पे नहीं कोई लगेगा. और फॉर्म नहीं. PCO2 राइज अगर पता करना है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में तो उसमें डिफरेंट फार्मूला है, और अगर एसिडोसिस है आई जिसमें थिंक फॉल पता वो सिर्फ एसिडोसिस का वो फॉर्मूला सिर्फ हाइपरवेंटिलेशन के लिए है शायद. हाइपोवेंटिलेशन हाँ, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लगेगा ना. वो एसिडोसिस के लिए, आपके पास इसके लिए यहाँ नहीं. पे इसके लिए डेविडसन में लिखा है 0.08 into बाइकार्बोनेट्स Okay, राइज it's a के लिए फॉर sorry, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. I mixed it up in my head as well. 0.08 into बाइकार्बोनेट्स लेवल जो उसके जितने हैं. okay, 0.08 into our bicarbonate level is 34. That's it's not making sense as well. Sorry, I've messed up something. Just give me a little bit of a while to process this. 34, 27.2 आ रहा है उसका. 0.8 into 34 is 27.2. See, that's still not making sense to me. Let's just try to tally it with this table. 365 जिसके ऊपर सारी reference ranges बनी हुई हैं. ठीक है, so we've established this is metabolic alkalosis. At least we've done that. ठीक है, so let's look at whether there is compensation or not. ठीक है, normal हमारे पास PCO2 होती है 40 से लेके नहीं 34 से 35 to 45 होती है PCO2 तो. 35 to एक second, I'm just trying to get the ABG values, clear all of my drawings, and we'll look at the Davidson values. ठीक है, 34 to 45, perfect. ठीक है, तो it's just easier to remember 35 to 45. So it's within the normal range. It's within the normal range anyway. So हाँ, at तो this point, कंपनसेशन नहीं हुई अभी ना.
कंपनसेशन वैसे नहीं। डेविडसन में भी वो कह रहा था कि metabolic 50 acidosis से है जो। 55 हो तो तब कंपनसेशन है, मतलब 50 से 55 तक है तो वो कंपनसेशन की रेंज में आता है PCO2। इनकी PCO2 40 है ना, हाँ ये तो नॉर्मल है, फिर नॉर्मल तो रेंज में आ रहा है ना ये तो। कंपनसेशन अभी नहीं है, सिर्फ जस्ट अल्कलोसिस है मेटाबॉलिक ना, कंपनसेशन हो ही नहीं रही अभी, ठीक है, तो विदाउट कंपनसेशन आ जाएगा इसका। ऑल राइट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। एज यू कैन सी ये टॉपिक इतना गंदा है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस? ऑल राइट, हु कैन टेल मी दैट? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की अंडरलाइंग पेप्टिक कॉज सिनेरियो के हिसाब से वॉमिटिंग हो रही है। मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। हाँ ठीक है, परसिस्टेंट जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही थी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि इसके अंदर या वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर जैसे नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है किसी के अंदर, तो उसके जो हम गैस्ट्रिक के अंदर हाइड्रोजन आयंस निकाल लेते हैं, उसकी एसिडिटी निकाल लेते हैं, तो उसके अंदर फिर हमारे पास ये एसिड बेस ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कॉज होगी द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग दैट्स हैपनिंग, and then there's also like other clues, palpable mass epigastric region में, visible peristalsis है, it means there's some obstruction going on over there। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। yeah, gastric outlet obstruction most probably इसमें। फिर list 4 causes of this disorder unrelated to this patient। तो अब metabolic, Diuretic use. हाँ, metabolic alkalosis की आपने कोई भी 4 causes बता देनी है। हाँ जी, 4 causes बताएं metabolic alkalosis की कोई भी। Diuretic abuse. Diuretic abuse and vomiting, वॉमिटिंग तो चलो assume कर लिया इसमें हो गया, एक और फिर mineralocorticoid excess अगर होगी, हाँ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी diuretic, diarrhea, बिल्कुल, हाँ इन सम केसेस जैसे क्लोराइड लॉस वाला डायरिया उसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी आप, और उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम भी है, उसके अलावा सिवियर हाइपोकैलेमिया भी है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कॉजेज हैं, तो लेट्स जस्ट गो बैक अप टू द कॉजेज एंड जस्ट रिमेंबर इट। वॉमिटिंग एंड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, डायरेटिक था, विलस एडेनोमा ऑफ कोलन, हाई क्लोराइड कंटेंट वाला डायरिया। फिर हमारे पास आती हैं प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म एंड कुशिंग सिंड्रोम एंड सिवियर पोटेशियम डिफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, 4 कॉजेज कम से कम याद रखनी है, बिकॉज अब क्वेश्चन पास्ट पेपर में हमने ट्रेंड देख लिया कि कम से कम वो 4 कॉजेज तो पूछते ही हैं। ठीक है, mention 2 important steps in the management of this patient। तो इसकी अब हमें अपनी पूरी जो मेडिसिन की हमने पढ़ा है उससे हम यूज करते हुए हम इसके अंदर क्या मैनेजमेंट देंगे, मतलब पेशेंट के साथ हो क्या रहा है, पहले ये बताएं। ना इसका बीपी देखें, बीपी किधर गया है, 90/60 है, पल्स भी रेज्ड है, हाइपोटेंशन हुई है। हाँ देखो ना, हाइपरटेंशन हुई भी है, तो आप उसको कोई रिससिटेटिव या नॉर्मल सलाइन जिन्होंने लिखा है, सलाइन जिसने लिखा बिल्कुल परफेक्ट रिससिटेटिव, 0.9% वही देंगे सलाइन। तो पहले आप रिससिटेटिव कोई मेजर बता दें कि नो गिव हिम ऑक्सीजन, गिव हिम व्हाटएवर, फिर आप ये नॉर्मल सलाइन वाली बात भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज इज द करेक्शन ऑफ द थिंग। In this patient we will give potassium as well क्योंकि उसका potassium जो है ना वो lower limit से नीचे है। Let me look at the potassium. Yeah, this should have been 3.5 to approximately 5. So this is also less. Thank you for noticing that. In fact, इसका sodium भी कम है. Yeah, sodium भी कम है, potassium भी कम है. तो normal saline से तो sodium वापस चला जाएगा और फिर potassium भी दे सकते हैं. Good point, Pungal. That's pretty nice. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमने आंसर कर लिया है फाइनली। तो we've looked at metabolic acidosis, we've looked at metabolic alkalosis। हाँ, सर्जरी होगी वैसे definitive management, बट उससे पहले resuscitate करेंगे। Absolutely correct। ठीक है ना? अच्छा, now I said that I would read out that salicylate thing जो किसी ने Facebook पे भेजी थी। They've written, and I think this is a line of Davidson as well। ये हमारे जो पेज नंबर 365 के ऊपर टेबल 14.19 बना हुआ है, उन्होंने उसके अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो सैलिसिलेट पॉइजनिंग है, जो हम एस्पिरिन दे रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है,
और उसके अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्यों? इज बिकॉज रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर डायरेक्टली स्टिमुलेटेड। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर डायरेक्टली स्टिमुलेटेड, तो हाइपरवेंटिलेशन होगी। हाइपरवेंटिलेशन में क्या होगा, सारी हमारी जो CO2 बॉडी की है वो बाहर फेंक देगा, और अगर CO2 बाहर चली गई है सारी, तो इसका मतलब है बॉडी का एसिड कम हो गया, और इसका मतलब है एल्कलोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो they've written a very interesting mechanism, and I highly recommend कि आप लोग बेसिक चीजें याद रखें, क्योंकि एंड पे फिर ना मैकेनिज्म याद रहता है ना बेसिक चीज याद रहती है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू मेक योर लाइफ इजी। ऑलराइट, रेस्पिरेटरी, अब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं मेन आपको डिजीज इसके क्या कहते हैं, मेन जो है डिजीजेस, हाँ वही कॉजेज बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन की वजह से होता है। ठीक है, श्योर। प्राइमरी पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, COPD, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो सही से या हाइपोवेंटिलेशन। सॉरी अगर मैं ना कभी कभार कोई उल्टी चीज बोल देती हूँ, जस्ट समझ लिया करें या मुझे करेक्ट कर दिया करें। ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस है, फिर कोई भी इंजरी टू द ब्रेन स्टेम्स में सीनस मैलफंक्शन, फिर ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोवेंटिलेशन, मॉर्फिन, कोई एनेस्थेटिक्स, कोई सेडेटिव्स दी थी, इन सब केस में हम पिन पॉइंट प्यूपल्स देखेंगे, कोई भी रेस्पिरेटरी सेंटर का प्रॉब्लम, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल फटीग। और मॉर्फिन के लिए इसकी एंटीडोट क्या है, मुझे कौन बताएगा? मॉर्फिन की एंटीडोट क्या है? Naloxone. या परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने एस्टैब्लिश कर ली कि पेशेंट को मॉर्फिन जो है ओवरडोज हुआ, तो उसको आपने नैलोक्सोन देना है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में देयर विल बी कंफ्यूजन, देयर विल बी मायोक्लोनस विद एस्टेरिस्क एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, आप पेटेंसी चेक करें पेशेंट की एयरवे की। ठीक है, वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, पेटेंसी चेक करेंगे एयरवे की। अगर उसका EBGs आपने किए, उसके PO2 कम आ रहा है, तो उसकी ऑक्सीजन देंगे। और ऑक्सीजन आपने ध्यान के देनी है, आगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे COPD पेशेंट्स के अंदर आप प्योर ऑक्सीजन या मतलब बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं देते, क्योंकि उसके अंदर there's its adverse effect। ठीक है, we'll look at that later। फिर कोई भी उसकी रिवर्सिबल दूसरी कॉजेज उसको आपने करेक्ट करना है। and then alveolar ventilation आपने improve करनी है। You can do pulmonary toilet, you can do you can remove any obstruction if there's there। कोई drug induced है तो आप agent body से clear करवाएंगे। again naloxone इसलिए दिया हुआ because morphine overdose is actually more common than you think it is। फिर bronchodilators दे सकते हैं, ऑलराइट, और इंट्यूबेशन भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर हमारे पास आ रहा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, एल्कलोसिस के अंदर हर चीज जो हाइपर वेंटिलेट कराती है, ठीक है, उसके अंदर एंजाइटी हो सकता है, उसके अंदर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोनिया, सेप्सिस हो सकता है। ठीक है, या हाइपोक्सिया हो सकता है, बिल्कुल हाइपोक्सिया की वजह से इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है। फिर प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो है सीरम प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज होने की वजह से हाइपरवेंटिलेशन होती है, बट इसको कोई खास ट्रीट नहीं करते, वी जस्ट लीव इट एज इट इज। फिर लिवर डिजीज के अंदर अगेन इसमें मेडिकेशन सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी, अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, के एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, उसके अलावा बिकॉज ये रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है, तो एस्पिरिन जो है सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी हो सकता है। ठीक है, फिर हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम, I've added something here, alkalosis is hypokalemia। all right, तो we'll discuss how जब भी alkalosis हो रहा हो, ठीक है, जब भी alkalosis हो रहा हो तो it leads to hypokalemia, चाहे वो metabolic alkalosis है या चाहे वो respiratory alkalosis है, तो उसकी वजह से हमारे पास hypokalemia होगा। इसका mechanism हम जब hypokalemia पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें टेटनी भी हो जाती है। इसका भी एल्कलोसिस में ये है,
ठीक है, टेटनी की कॉज क्या है, चाहे वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो, जब भी हमारे ब्लड की पीएच ज्यादा हो जाएगी तो एल्ब्यूमिन के साथ ज्यादा कैल्शियम बाउंड हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम दो इस तरह तरीकों से प्रेजेंट होता है, या फिर वो बाउंड होता है एल्ब्यूमिन से या फिर फ्री ऐसे आयनाइज फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमारे पास वो बाउंड वाली ज्यादा हो जाएगी और जो फ्री कैल्शियम था हमारे पास वो हो जाएगा कम, तो बज़ाहिर हमारे पास हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। तो जब भी होगा एल्कलोसिस उसके अंदर हमारे पास आ जाएगी टेटनी। ठीक है, तो टेटनी वाले जो सिम्टम है वो आपको एल्कलोसिस में मिलेंगे। क्यों? बिकॉज हमारा जो आयनाइज जो हमारा जो फ्री फॉर्म था उसका, अनआयनाइज्ड कहना चाहिए आई थिंक, फ्री फॉर्म था उसका कैल्शियम का, वो हो गया हमारे पास कम। ठीक है, आई एम जस्ट करेक्टिंग, यस आयनाइज्ड है, रिडक्शन इन आयनाइज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये पेज 367 पे लिखा हुआ है डेविडसन में। ठीक है, तो we've looked, okay, let's look at the treatment again. Underlying cause की treatment है, and sometimes this does not need to be treated in the case of pregnancy, और हम लोग inhaled जो उसको inhalation देते हैं मिक्सचर की, उसके अंदर CO2 वगैरह देते हैं, और या फिर हम एक पेपर बैग के अंदर उनको ब्रीथ करने को देते हैं। ठीक है, पेपर बैग के अंदर CO2 जमा हो जाएगी और फिर उससे वो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। ये इतने हाई यील्ड नहीं है जितने के, एक तो सबसे ज्यादा हाई यील्ड CO2 is a stimulus for breathing. ठीक है, वो ऑलरेडी हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, तो why are we making them breathe in carbon dioxide? इसीलिए ऊपर कि वो प्योर लॉस ऑक्सीजन कर लिया देते ना हुए उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कर लिया ना, रिडक्शन ऑफ PCO2 रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है ना, तो हम उनको वही PCO2 वापस दे रहे हैं बैग के थ्रू। मतलब बैग में वो जब सांस लेंगे तो वो PCO2 दोबारा से इंस्पायर भी कर लेंगे ना। मतलब ज्यादा नहीं point ये कि कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है, हम चाहते हैं कि जो CO2 है ना वो ब्लड के अंदर जाए। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है ना, इसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा CO2 हो रहा था लूज। अब हम नहीं चाहते वो लूज हो। ठीक है, अब वो लूज ना हो उसके लिए हम CO2 जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर एटमोसफियर में उसको ज्यादा कर रहे हैं, ताकि वो बॉडी के अंदर रिटेन रह सके, जितनी रिटेन रह सके। तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक हम CO2 को वापस भेज रहे हैं अंदर। ठीक है, इसको सिंपल कर लो, सोच लो कि CO2 हम वापस भेज रहे हैं, चाहे हम उसको इनहेल मिक्सचर दे रहे हैं या वो पेपर बैग में दे रहे हैं कि वहां CO2 जमा हो जाए और वो वापस चली जाए अंदर। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप जिस तरह भी इसको याद रखें, आपको मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए, अप्रोप्रिएट पॉइंट्स। ठीक है, I think that we've earned a pretty big break, but उससे पहले I think that we should do some scenarios. Sir, would you like to do the scenarios? ब्रेक के बाद कितने 8:20 पे? चलो ठीक है, 8:20 ठीक है। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो है आपके पास, 60-year-old man with amyotrophic lateral sclerosis is brought into clinic by his family who are concerned that he is more somnolent than normal। ठीक है, somnolence है बेसिकली इसको। और एक ये amyotrophic lateral sclerosis जो है वो इसको नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। On further history, they report that he has been having problems with morning headaches and does not feel refreshed when he wakes up। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की। तो आपने इसका जो एसिड बेस डिसऑर्डर है इसको वो आपने बताना है। तो वन बाय वन हम इसको जो है वो देख लेते हैं। स्टेप 1 आपने जो देखना है ना, पूरा सिनेरियो एक तो देखना है कि उसमें कोई क्लू है आपके पास, उसको डायरिया है, वॉमिटिंग है, उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है, रीनल डिजीज़ है, डायरेटिक्स पर है, एक तो वो आपको क्लू देगा। दूसरा आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, वैल्यूज़ देख सकते हो। तो वन बाय वन जो है मुझे आपने चैट में बोलना है, क्योंकि जब सब लोग बोलेंगे तो फिर आवाज़ किसी की भी समझ नहीं आती। चैट में मुझे बताओ पीएच से आपको क्या पता लग रहा है? ओके, 7.35 टू 7.45 के अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल है, ठीक है, बट हम इसको कह सकते हैं कि ये लोअर लिमिट पर है। ठीक है, PCO2 से आपको क्या पता लग रहा है? अगर लोअर लिमिट पर है इट मीन्स कि अल्कलोसिस के आसपास है, ठीक है, अल्कलोसिस हम इसको कह सकते हैं। तो इंक्रीज PCO2, इंक्रीज PCO2 इसके साथ आपके सिनेरियो के साथ जाती है। इंक्रीज PCO2 में अल्कलोसिस होना चाहिए या लोअर लिमिट पर होनी चाहिए पीएच? अपर लिमिट पर होनी चाहिए या एसिडोटिक रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन का एज सच आपके उसके साथ नहीं है। बाइकार्बोनेट इज 32। इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है, नॉर्मल है, इंक्रीज्ड है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड है, ये आपको बताता है कि अल्कलोसिस किस टाइप का है? मेटाबॉलिक। और बाई ये जो आपके पास PCO2 बढ़ी हुई है, ठीक है, ये किस वजह से बढ़ी हुई है? हम्म, ओके, मैं फेसबुक चेक कर लूँ, उसके लिए अलग करना पड़ेगा। मैं चेक कर रही हूँ फेसबुक। ओके, कोई आए तो फिर मुझे इधर ही चैट में लिख देना। ठीक है, कंपनसेशन की वजह से जो है वो ये इंक्रीज हुई हुई है। इसके लिए हमारे पास हमारे लेवल पे ज़रूरी नहीं है वो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कंपनसेशन हो रही है या नहीं हो रही इसके लिए आपके पास अलग फार्मूलाज हैं। वो आपको फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है ना, इसको तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रही है या नहीं उसके लिए अलग फार्मूला है। और अगर हमारे पास ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता और उसमें रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रही है नहीं हो रही, उसके लिए अलग फार्मूला है, वो आप अभी पढ़ चुके हो। तो एक और सिनेरियो देख लेते हैं। इसमें अनाइन गैप का तो कोई ऐसा नहीं था, हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। सोडियम लेवल्स ABGs या इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं ये। सोडियम लेवल आपके पास हैं, पोटाशियम है, नज़र सही आ रहा है, ये पता लग रहा है क्या लिख रहे हूँ मैं? क्लोराइड है, PCO2 है, पीएच है और बाइकार्बोनेट है, ठीक है। 136 सोडियम, पोटाशियम इज 3.4, chloride is 112, PCO2 is 27, okay, pH is 7.35 and bicarbonate 14. 3, 5
ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके जो MCQs आएंगे वो इसी में होंगे, फिर आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल रेंज में, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है हमने, स्टेप 1, लुक एट द पीएच। क्या बता रही है पीएच? अल्कलोसिस की तरफ, लोअर लिमिट की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है कि अल्कलोसिस के साथ क्या चीज़ मैच कर रही है, ठीक है। अल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट इंक्रीज होने चाहिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कम होने चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा है इसमें से, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है आपके पास या बाइकार्बोनेट लेवल्स बढ़े हुए हैं? ये आपके पास बता रहा आपको, तो ये क्या हो गया? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। अगर आप इसका बाइकार्बोनेट भी देखो तो बाइकार्बोनेट लो गया होगा, ठीक है, वो कंपनसेशन की वजह से। आप इसमें एनाइन गैप इसमें करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, वो आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है उसके अंदर एनाइन गैप के बेसिस पे आप कर सकते हो कि ये लो एनाइन गैप के साथ अदर कॉजेज़ हैं, नॉर्मल एनाइन गैप के साथ अदर कॉजेज़ हैं, लेकिन हम वैसे ही मैयर करने के लिए इसको कर लेते हैं। क्या बनेगा आपके पास? 136 सोडियम, इसमें से आपने माइनस करना है पोटाशियम को भी, सॉरी क्लोराइड को भी। 112 प्लस माइनस करना है आपने बाइकार्बोनेट को, तो क्या आएगा आपके पास? ठीक है, तो सम बुक्स में जो है वो 6 to 12 नॉर्मल है, 8 to 12 नॉर्मल है, 5 to 11 नॉर्मल है, तो बहरहाल ये हर तरह से नॉर्मल है आपके पास। ठीक है, अब हम सिनेरियो जो है वो देखते हैं। इसमें अब मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपने खुद करना है, जिसका गलत आंसर होगा फिर मैं उसको बता दूंगा। सिनेरियो आपके पास आ गया है, जिनको सही तरह स्क्रीन नज़र नहीं आ रही वो pH इज़ 7.51। पहले तो पेन और पेपर ले लो, अपने पास रख लो, और एवरी वन पे आंसर नहीं करना, होस्ट ओनली। चलो अब करो। pH आपको क्या बता रही है? अब करो आंसर। PCO2, ओके, कुछ ने कहा है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कुछ ने कहा है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। चलो इसको देख लेते हैं, फिर अगला फिर सॉल्व करना है आपने। pH तो सिंपल आपको पता लग रहा है, 7.35 to 7.445 नॉर्मल रेंज है, इसमें बड़ी हुई है pH, तो दिस इज अल्कलोसिस। pH बढ़ने से अल्कलोसिस होता है, pH कम होने से एसिडोसिस होता है। PCO2 में अगर बढ़ी हुई हो तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस में बढ़ती है, तो ये तो इसके साथ मैच नहीं हो रही। अल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट बड़ा होना चाहिए, ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है, अब अगेन हमें वैसे तो फार्मूला की ज़रूरत है कि ये देखने के लिए कि PCO2 कंपनसेशन की वजह से बढ़ी हुई है या इसको साथ ही कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, लेकिन हमारे लेवल पे आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, तो ये कंपनसेशन की वजह से ही बढ़ी हुई है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो हर चीज़ के लिए अलग अलग कंपनसेशन फाइंड करने के फार्मूला हैं, वो आप गूगल करके या अपनी बुक्स जो हैं डेविडसन वगैरह उसमें लिखे हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला है उसमें हम मीटर फार्मूला लाजमी यूज़ करेंगे। इस सिनेरियो पे क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, फिर
डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। एक ने मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा है, एक ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहा है। चलो इसको भी वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पीएच देखी, पीएच क्या बता रही है आपको? एसिडोसिस। PCO2 लेवल्स एसिडोसिस में इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए? इंक्रीज होने चाहिए। 45 से अबव होने चाहिए, जो भी आपने अपर लिमिट याद की हुई है, लेकिन इसमें 28 है, 35 से कम है। दिस इज़ डिक्रीज, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। जब आप बाइकार्बोनेट लेवल्स देखोगे, बाइकार्बोनेट लेवल्स एसिडिक एसिडोसिस में बड़े होने चाहिए, कम होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो ये कम है नॉर्मल से? यस, कम है। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं है आपकी एसिड बेस बैलेंस, आप क्या क्या कहा ये? ओके, ठीक है, ये आपने कर लेना है। अब इसमें क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो इसमें आपका विंटर्स फार्मूला लग सकता है। विंटर फार्मूला आपको क्या बताएगा? विंटर फार्मूला पे आप ये चेक कर रहे हो कि जो PCO2 है, इसके अंदर जो डीरेंजमेंट है वो किस वजह से है? वो कंपनसेशन की वजह से है, या वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सुपर एडिड है इसके साथ? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी तो हो सकता है, ठीक है, लंग्स और किडनीज के प्रॉब्लम दोनों हो सकते हैं, या फिर ये कंपनसेशन की वजह से हुआ हुआ है, ठीक है, ये आपको बताएगा। तो विंटर फार्मूला आपके पास, बल्कि मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, वही यूज़ कर लेते हैं हम। वैल्यू याद रखनी है आपने, 28 एंड 14। ओके, ये वाला विंटर फार्मूला है। तो बाइकार्बोनेट कितना था? एक्सक्यूज द राइटिंग, आप अपना अपना सॉल्व करो। तो इसके पास रेंज हमारे पास आ रही है 27, 29 टू ±1 टू 27 टू 31 रेंज आ रही है, ठीक है। अगर इसके बीच में हमारे पास PCO2 है, इसका मतलब है कंपनसेशन की वजह से उसके अंदर चेंज है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है, मतलब 31 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी, जो नॉर्मल PCO2 ज़्यादा होने से होता है वही होगा। क्या होता है? एसिडोसिस। मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऐड है, सिर्फ कंपनसेशन की वजह से इंक्रीज नहीं है। और अगर 27 से भी कम चला गया बात, तो इसका मतलब है कंपनसेशन की वजह से नहीं है, साथ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी है उसको, ठीक है। तो 27 से 31 हमारे पास सिनेरियो में क्या था? सिनेरियो में हमारे पास था 28, तो ये विद इन द रेंज है। इट मीन्स कि ये कंपनसेशन की वजह से है, ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अब नेक्स्ट सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा, आपने खुद आंसर करना है। दिस इज़ द सिनेरियो, आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कंपनसेशन हो रही है नहीं हो रही, ये भी बताना है आपने, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी है, क्या है, एसिडोसिस और क्लोसिस है। 7.35 to 7.45 is normal range. This one is alkalosis. PCO2 अल्कलोसिस में डिक्रीज होनी चाहिए, जो कि है, तो इट माइट बी रेस्पिरेटरी। और बाइकार्बोनेट अल्कलोसिस में बड़ा होना चाहिए, जो नहीं बड़ा होगा, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैसे है? ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है आपके पास 7.47। हाँ, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। ये किस लिए है? ये कंपनसेशन की वजह से, बल्कि ये भी कम हुई भी है, सॉरी।
रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, हाँ ये कम हुई भी है तो कंपनसेशन की वजह से, ठीक है। जब कम होगा तो बेस आपकी रिमूव होगी ना बॉडी में से, जब बेस रिमूव होगी तो अल्कलोसिस की कंपनसेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिनेरियो है। एक और है आई थिंक, वो कर लेते हैं। बस ये लास्ट है, इसको ध्यान से करना है आपने। और अगर विंटर्स फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है तो विंटर्स फार्मूला अप्लाई करना है। विंटर्स फार्मूला अप्लाई होता है किस पे, ये भी याद करना है आपने, मेटाबॉलिकल क्लोसिस पे या रेस्पिरेटरी क्लोसिस पे, एसिडोसिस पे, किस पे होता है। ठीक है, पीएच से आपको पता लगा एसिडोसिस है। आगे PCO2। ओके, ओके, पीएच इज एसिडोसिस की रेंज में है, ठीक है। PCO2 भी एसिडोसिस की रेंज में बढ़ी हुई है, और बाइकार्बोनेट लेवल कम हुआ हुआ है, ये भी एसिडोसिस की रेंज में है, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें अगर आप कहते हो कि प्राइमरीली मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, चलो मान लिया। अब आप ये देखोगे कि ये PCO2 कंपनसेशन की वजह से बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई, ठीक है। तो कंपनसेशन का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंपनसेशन के लिए आपको विंटर्स फार्मूला यूज़ करना होता है। तो वो क्या बनेगा यहाँ पे, वो हम मैं ये कर लेते हैं। बाइकार्बोनेट इज़ 14, ठीक है, इंटू 1.5, इसको आपने ऐड करना है 8 में, और रेंज निकालने के लिए ±1 2 करना है। तो क्या रेंज बनी है, कोई सॉल्व किया किसी ने? 27 to 31 रेंज किसी ने लिखी है, तो चलो मान लेते हैं 27 31 है। तो अब 27 to 31 के बीच तो नहीं है ये तो 49 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, अगर रेंज से बाहर हो, ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और रेंज से कम हो तो हम कहेंगे कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, और अगर विद इन द रेंज हो तो हम कहेंगे कि ये कंपनसेशन की वजह से है। तो रेंज से बाहर है, इसका मतलब है कंपनसेशन से बात बाहर निकल चुकी है। तो इस सिनेरियो का आंसर है मिक्स्ड एसिडोसिस, ठीक है। उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो इसलिए हमें विंटर्स फार्मूला चाहिए होता है कि ये देखने के लिए कि कंपनसेशन ही हो रही है या साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका डीरेंज्ड है, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं जो आप याद कर सकते हो। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। PCO2 आप ये, बल्कि PH है ये, सॉरी, 7.35 to 7.45, बाइकार्बोनेट लेवल्स 21 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, सोडियम 135 से 145, पोटाशियम 3.5 से 5, क्लोराइड 90 to 110, एनाइन गैप ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हो 6 to 11, ठीक है। एनाइन गैप निकालने का फॉर्मूला क्या है, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस मतलब सोडियम में से जो है, मतलब कैटाइंस में से आपने सारे एनाइंस को जो है वो माइनस कर देना है। इसमें पोटाशियम हम यूज़ नहीं कर रहे, पोटाशियम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे, दैट इज़ मेनली एन इंट्रासेलुलर कैटाइन, इस वजह से नहीं यूज़ कर रहे। तो एनाइन गैप निकालते हुए ये, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको फरजीन ने कर दी है कि ये क्या मैयर कर रहा होता है बेसिकली एनाइन गैप। कोई ये कंफ्यूजन रह गई है तो चैट में भेज दो, PCO2 की चैट में जगह भेज ये दो। pH नहीं होना चाहिए 7.35 to 4? या हाँ, मैंने वो करेक्शन की है ना, PH ही है ये। PCO2 कितनी होती है, 35 to 45, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके ओके, फेसबुक पे जितने लोग हमें देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप ये पेज लाइक कर लो, इसके
फ्यूचर में भी हम जो सेशन करवाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, लाइव सेशन जो भी होगा। उसके अलावा आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप जो फाइनल ईयर का बना हुआ है वो भी ज्वाइन कर लो। ओके, जूम वाले यहीं पर रहें, अभी जो है वो सोडियम और पोटाशियम डिस्कस होगा, उसके इम्बेलेंसेस। बाकियों को अल्लाह हाफिज़।